Great morning, students. Yesterday we have discussed about the rules and properties of multiplication of integers. There were 2 rules and 7 properties for multiplication of integers. Today we will discuss some important results regarding multiplication of integers. The first result is that if we multiply n terms with negative sign, that is, if I say -1 minus a1 multiply minus a2 multiply minus a3 so on up to minus an. That means if we have n terms with negative sign, we have to find out the result of multiplication of these negative terms. In this we have 2 cases, one for when n is even and one when n is odd. Let us discuss first when n is odd number. When n is odd numbers are those which are not divisible by 2. That means if I say these terms are 71, suppose if I say 71, but 71 is a larger number. If I say these are 5 terms, only -1 multiply minus a2 multiply minus a3 multiply minus a4 multiply minus a5. 5 number of terms, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 is an odd number. If we have odd number, then our result will be a negative integer. If we have n odd numbers, means if we have value of n as odd number, then our result will be a negative integer. Suppose if I say we have to multiply -2 -3 -4 -5 and -6. In this, firstly we will multiply these 2 integers. These 2 are negative integers. Their result will be a positive integer. This is 6. And again these 2 are negative integer. If we multiply these 2, their result will be a positive integer. And this last one, this is a negative integer. Here these 2 are positive and this one is negative, means one positive integer, one negative integer. So the result will be a negative integer. The result is 6 multiply 6 is 36. 36 multiplied by 2 is 72. Answer is -72. In this case we have 5 number of terms. 5 is an odd number, that's why our answer is negative. So overall we can say that if we have n number of odd terms, if we have number of odd terms, then we can say that our result will be negative. Means the multiplication of this equation is minus will come first, then a1 multiply by a2 multiply by a3 and so on up to an if we have n odd numbers. And if I say when n is even, in that case our result will always be a positive integer. In that case it will equal to a1 multiply a2 multiply a3 and so on up to an. मतलब क्या है कि अगर हमारे पास n odd टर्म्स है, मतलब अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 4, 5 हैं या 7 है और सारी टर्म्स के आगे नेगेटिव साइन आता है, तो हमारा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास इवन टर्म्स है, इवन मीन्स
2, 4, 6, 8 ये वाली टर्म्स हैं। तो जब हम ये वाली टर्म्स विद नेगेटिव साइन, मतलब कि हर एक टर्म के आगे नेगेटिव साइन है और जितनी टर्म है वो कितनी क्या है, इवन है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे कि ये है, यहाँ मैंने बोला कि n क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव। यहाँ मैंने बोला n ऑड नंबर है, तो रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा और अंदर जो टर्म्स बची उनकी मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही इस केस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हम क्या करते हैं, हमारा मान लेते हैं, हमारा अंडरस्टूड होता है कि यहाँ हमारा पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव साइन, बाकी सारी टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई। ये हमारे फर्स्ट 2 रूल्स है। बाकी जो 4 रूल्स हैं वो इनकी हेल्प से हमने फर्दर डेवलप करे कि इनका यूज करके आगे वाले 4 रूल्स हम कैसे कर सकते हैं। आगे वाले 4 रूल्स हमारे क्या हैं। थर्ड रूल इज इफ वी हैव n even same terms, that means if we have to multiply minus a n times, minus a n times, मतलब हमें माइनस a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसके फिर से 2 केस बनेंगे, n इवन होगा या ओड होगा। n जब हमारा ओड होगा, when n is odd, जब हमारा n ओड होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा। लास्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, जब n ओड था तो नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव साइन हमने बाहर लिया था, बाकी जितनी टर्म्स बची थी उनको ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई किया था। यहाँ क्या है, सेम टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन आगे आएगा और जो नंबर है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो उसकी पावर बन जाएगी। माइनस a raised to power n is the answer of product of minus a n times. If we multiply minus a n times where n is an odd number, then our result will be minus a raised to power n. If we discuss the another case, that is when n is an even number, then when n is even, in that case, in the earlier case we have said that when n is even then our result will be a positive number. In this case the result will be same, result will be a positive integer, but we have same number of terms, the term is same in each case, that is a, so our result will be a raised to power n. मीन्स क्या है, जब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर को वो अगर सेम है तो उसको हम जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वो उस नंबर की पावर बन जाती है। दोनों केसेस में वो उसकी पावर बन जाएगी, पर साइन के बारे में क्या है, अगर ओड है तो माइनस साइन आएगा, अगर इवन है तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है। ओड के केस में माइनस ए रेज टू पावर एन, इवन के केस में ए रेज टू पावर एन। अगर हम a को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, इफ वी रिप्लेस a by 1 means we have to multiply -1 n times. -1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम होगा। और क्या है कि 1 हमारा ऐसा नंबर होता है जिसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो हमेशा रिजल्ट 1 आता है। चाहे इसको 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3, 4, 5, 20, 2000, 20 लाख, जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 1 आता है। ओके, बट यहाँ क्या है कि क्या है, n हमारा यहाँ इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। ठीक है, हमें -1 बोल रखा है, -1 के केस में हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ सिंपल 1 होता तो उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो आंसर हमेशा 1 आता है, बट यहाँ -1 है।
-1 को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आएगा। अगर इसको ओड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर? -1। व्हेन n इज ओड, जब n ओड होता है तो -1 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर -1 आता है। ठीक है, जब हमारा n ओड होता है और -1 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा -1 आता है। और जब हमारा n जो है वो क्या होता है? इवन। व्हेन n इज इवन, इन दैट केस आवर आंसर विल बी 1 ऑलवेज। क्या कहते हैं कि जब हमारा -1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और n जब ओड होता है तो -1 आंसर, n जब इवन होता है तो 1 आंसर। ठीक है, ये हमारे 6 केसेस थे कि हम कैसे हमारी जो टर्म्स डिफरेंट होती हैं और नेगेटिव साइन के साथ होती है तो रिजल्ट कैसा आता है, सेम टर्म्स होती हैं तो कैसा रिजल्ट आता है, और 1 होता है तो कैसा रिजल्ट आता है। हमारे जो फर्स्ट 2 रिजल्ट थे उनका यूज करके बाकी हमने 4 रिजल्ट्स को डेवलप किया कि बाकी किसमें क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1B। Exercise 1B, question 1. Exercise 1B, question 1, part 1. We have to multiply 16 by 9. 16 by 9 means 16 multiply 9. Answer is 144. This is the easy one. We have to simply multiply 2 numbers. In this case, one more thing is that we have 2 numbers with same sign. That's why our answer will be a positive integer. In second, if I say we have to multiply 18 by -6. We have to multiply 18 by -6. 18 by -6. In this case, one number is negative, one is positive. So our answer will be a negative integer. It is -108. And seventh part is that we have to multiply 0 by -23. प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या थी? जब हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आता था? 0, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो। तो जो हमारा 7th पार्ट है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 0 बाय -23। इस केस में आंसर 0 होगा। ठीक है, एक और केस डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो दोनों नेगेटिव हैं, means we have to multiply, there is a part name 10th part, multiply -36 by -50. In this both integers are negative, means the result will be a positive integer. According to rule, if we have integers with same sign, then आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर यहाँ हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जब इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18। आंसर इज 1800, नॉट -1800, बिकॉज बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव। सो आंसर इज 1800. Now come to question number 2. Question number 2 is that find the each of the following products. In this we have to find the product of each. In first part we have given 3 multiply 4 multiply -5. Question number 2, part 1, 3 multiply 4 multiply -5. 3 multiply 4. Both are positive integers.
their result will be positive, that means it is 12 and this is -5. One negative, one positive, result will be negative and answer is -60. जब एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर नेगेटिव आता है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया है -60। इसका नेक्स्ट पार्ट गिवन है हमें 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6, 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6। इसमें 3 टर्म्स गिवन है, 2 के साथ माइनस साइन है, 1 के साथ प्लस साइन है। अभी अभी हमने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे उसमें क्या था, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन वाली टर्म्स इवन है तो वो क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। तो 2 टर्म्स हैं, 2 के साथ नेगेटिव साइन है और 2 कैसा है इवन नंबर है, तो ये टर्म्स हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, आंसर इज 60। यहां क्या थी कि एक जो टर्म थी वो नेगेटिव थी और 1 कैसा नंबर था ऑड था। यहां जो क्या है 2 नेगेटिव टर्म्स हैं और 2 कैसा नंबर है इवन है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आया है इस केस में। इसी क्वेश्चन का अगर थर्ड पार्ट देखते हैं तो उसमें क्या गिवन है हमें, -5 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय -3। -5 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय -3। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये देखो 3 टर्म्स है हमारे पास, तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं और तीनों के साथ नेगेटिव आंसर है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट 1 था, रिजल्ट 1 में क्या क्या था, 3 टर्म्स थी, डिफरेंट थी। 3 क्या है ओड नंबर था, 3 ओड नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव बाहर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में जो टर्म्स बची वो लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 5 8 40 एंड 43 120, आंसर इज -120। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं 4th 5th एंड 6th वो इसी पैटर्न पे हैं, वो आपको खुद से करने हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, जितनी भी टर्म्स हमें जितने पार्ट्स गिवन है सबका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 4 टर्म्स गिवन है, वी हैव गिवन 4 टर्म्स, ईच टर्म इज नेगेटिव, ईच टर्म इज अ नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 then -8 then -10। क्या करना है, हमें इन 4 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या है 4 टर्म्स है हमारे पास, वी हैव 4 टर्म्स एंड 4 इज एन इवन नंबर, इन दैट केस आवर रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल दीज टर्म्स कम इन अ सिंगल ब्रैकेट, 4 multiply 5 multiply 8 multiply 10. You can multiply these 2 numbers and these 2 numbers. Our answer will be 5 multiply 4 is 20 and 8 multiply 10 is 80. 2 8s are 16 and 2 zeros. Answer will be 1600 plus 1600 because we have 4 terms with negative sign and 4 is an even number. Its second part, in second part we have 5 terms, we have 5 terms and 5 is an odd number, so the result will be negative in second part. Now come to part 5.
Fifth part, in fifth part they are saying that -3 is multiplied 6 times. -3 is multiplied 6 times. 6 times means जो 6 क्या है हमारा इवन नंबर है, और जब इवन नंबर था तो हमने क्या बोला था कि जो रिजल्ट होता है इवन के केस में वो हमेशा प्लस होता है, और जब इस टाइप की टर्म्स आती हैं तो उनका रिजल्ट कैसे लिखते हैं, 6 है इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और इसको कैसे लिख देंगे 3⁻6। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं ऐसे कि सेम टर्म्स है हमारे पास, कोई भी एक सेम नंबर है वो जितनी भी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उस नंबर की पावर बन जाती है। इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर प्लस आ गया, ठीक है। एक और पार्ट इसमें गिवन है, हमें क्या करना है, हमें -5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई -5 5 टाइम्स। Okay students, means 5 is an odd number, because 5 is odd number so the result will be negative. Its answer is -5⁵, because we have to multiply -5 times. जितने भी टाइम उसको मल्टीप्लाई करना होता है वही उस नंबर की पावर हो जाती है। अगर यहाँ ओड है तो माइनस में साइन आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ इवन है तो प्लस आ जाएगा। ओके, इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं, वो क्या कह रहा है कि हमें -1 गिवन है और -1 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 200 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है 200, और जब इवन नंबर में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस आता है, और 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर 1 आता है। तो क्या है इस केस में, वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 200 टाइम्स, सो इट्स आंसर इज 1। एंड इन 8th पार्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 171 टाइम्स। 171 is an odd number. Due to this reason the result will be negative and answer is -1, because multiplication of 1 any times is always 1. Okay students, that's all for today's. Thank you.